So statement is mass is neither created nor destroyed, right? पहला statement. या फिर chemical reaction में always total mass of reactants is always equal to total mass of the products. Okay, that is the first law of law of conservation of mass. Okay. Second law was law of definite proportion. या फिर law of definite composition. So tell me, a compound is always made up of what? Elements, right? If I say compound carbon dioxide, किसका बना है? Carbon and Oxygen. the compound is always made up of elements. And in compound, the mass percentage of element is always क्या? Same, right? So if I take carbon dioxide, then carbon dioxide, the percentage of carbon mass and percentage of oxygen by mass will be always same, right? So statement क्या है? Pure compound always contain exactly same proportion of elements by weight. Weight या फिर mass, you can say. So now if I ask you, if I take compound water, in water, what is percentage of hydrogen? Always in water, what is percent of hydrogen? Always 11.11% by Mass. mass. And oxygen 88.89% by Mass. mass. Okay, other example, methane. The percentage of carbon is always 75% by mass, right? And I told you how to calculate it. And percentage Yes. of hydrogen 25%. by mass. Okay. Next law is law of multiple proportion. तो हम लोग यहाँ पे देखा था law of multiple proportion. So बस इस law में आपको क्या देखना है? You have to take two elements, right? Same elements. And you have to form minimum two or more than two compound. उसके दो या दो से ज़्यादा compound बनने चाहिए. Suppose ये carbon and oxygen and form carbon monoxide, बराबर है? Yes. And carbon dioxide. So using same elements, carbon and oxygen, you can form two compound, carbon monoxide and carbon dioxide. ये करते हैं अगर आपने किसी एक का मास फिक्स रखा है, यहाँ पे आपने किसका मास फिक्स रखा है बोलो? कार्बन का एलिमेंट का मास फिक्स रखोगे तो दूसरे का मास क्या होगा? इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. व्हाट इज रेशियो ऑफ ऑक्सीजन का मास? 16:32 या फिर 1:2. Okay, plus I'll give one more example, then we'll write the statement. एक example और देखते हैं. चलो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं? क्लास मालूम है आपको एक प्रोडक्ट कोई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन? Water. वेरी गुड, वाटर. कोई दूसरा प्रोडक्ट मालूम है आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दूसरा प्रोडक्ट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. वेरी गुड. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फॉर्मूला मालूम है किसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? H2O2. हाँ. तो क्लास ओके, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दो सेम एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है. सपोज इफ आई कॉल हाइड्रोजन एज ए, ऑक्सीजन एज बी, तो दोनों भी रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले एलिमेंट सेम है. कौन? हाइड्रोजन एंड Oxygen. और प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है. मिनिमम यू आर गेटिंग टू और मोर प्रोडक्ट्स. आर यू गेटिंग टू प्रोडक्ट्स? मिनिमम टू Yes, मिलने, sir. वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, तो क्लास अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 ग्राम हाइड्रोजन, कितना लेता है हाइड्रोजन? 2 ग्राम. तो एक और ऑक्सीजन 16 ग्राम. तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है? 2 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 16 ग्राम ऑक्सीजन. क्लास वाटर कितना बनेगा? 18 gram. Which law? Which law? Law of conservation of Law mass. of conservation. Law of conservation of mass. Very good. हाँ, तो अभी आपको किसी का एक का मास फिक्स रखना है. चलो हाइड्रोजन का वापस फिक्स रखते हैं. 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. इफ आई टेक 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस इफ ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन 32 ग्राम. आप बोलोगे कैसे, क्यों? मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी. कैलकुलेटर सीखेंगे तो वहां पे आ जाएगा सेकंड चैप्टर में. तो 32 ग्राम. तो प्लस ये कितना बनेगा? 34 ग्राम. तो प्लस स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? when two elements statement, when two elements
ए एंड बी, राइट? तो यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ इस केस में ए एंड बी कौन है? यहाँ पे इस केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Oxygen. When two elements A and B combine to form two or more products, right? तो यहाँ पे किसका मास फिक्स है? Hydrogen. Hydrogen. हाँ. Then masses of element B. masses क्यों लिखा? Because अलग अलग masses, right? ऑक्सीजन का 69 थोड़े. Masses of element B that combines with fixed mass, बराबर है? तो फिक्स मास है ना हाइड्रोजन का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Mass of element A fixed mass of element A are in what? Simple whole number सर ये लिखना है. ratio. नहीं मत लिखो, नहीं तो मैं are in simple whole number ratio. तो class what is ratio of masses of oxygen? 1:2. 1:2, right? 16:32. That is 1:2, right? So this is law of multiple proportion. Okay, ये law आपको समझा सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ये रेशियो कैसा है बोलो? दिस रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट? सिंपल रेशियो Yes. मतलब क्या? आंसर शुड नॉट बीन पॉइंट्स 2.8 1.6 9.1 ऐसा पॉइंट में नहीं आना चाहिए. आंसर कैसा चाहिए? होल नंबर में चाहिए. रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ओके, प्लस नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग, अवोगाड्रोस लॉ. आपका स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट हो गया ना? यस सर. Yes, sir. तो वहाँ पे अपने Yes, अवोगाड्रो sir. लॉ सिखा रहेगा सब लोगों ने? No, sir. नो सर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अवोगाड्रोस लॉ. ओके, तो आई टेल यू लॉ, मतलब यहाँ पे लॉ दो तरीके से बताया जा सकता है. तो अपने चैप्टर में बहुत छोटा सा है, दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत डिटेल में है, तो आपको दोनों बताता हूँ. आपको वहाँ पे भी सर, help हो आप जाएगा. जो लिख रहे हो वो लिखना है. नहीं कुछ मत लिखो, मैं आपको नोट्स भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ, डोंट वरी. आज पक्का भेजता हूँ. अवोगाड्रोस लॉ. ओके, तो क्लास अभी हम लोग काम करते हैं एक सिलेंडर में. ओके, सपोज वी टेक अ सिलेंडर. ओके, सिलेंडर फिटेड विद द पिस्टन. तो आपने पिस्टन सुना है ना स्टेट्स ऑफ मैटर में? पिस्टन अपने तो गैस लॉ नो सर. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ नहीं स्टार्ट हुआ आपके अभी तक गैस लॉज वहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर में? No, sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम. पिस्टन बता दो क्या होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा समझेगा. प्लस इंजेक्शन के सिरिंज को एक पिस्टन होता है ना, मैं उसको आगे ढकलने के लिए. Yes. Yes, sir. देखा आपने पिस्टन इंजेक्शन को? Yes, सिरिंज को sir. पिस्टन होता है, ऐसा पिस्टन होता है, पता है? अभी समझ रहे हैं पिस्टन? Yes. या फिर यस सर. पिचकारी को पिस्टन होता है. हाँ, ये वो हाँ, ठीक है. ये आई होप यू अंडरस्टैंड पिस्टन क्या होता है. तो ये क्या है? पिस्टन है, ठीक है. हाँ, तो अंदर कोई गैस है. क्या अंदर क्या है? कोई गैस है, कोई भी गैस है. से फॉर एग्जांपल कौन सा गैस है अंदर? ऑक्सीजन गैस है. कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस. मेरा आवाज आ रहा है आपको सब लोग को? Yes, sir. यस Yes, सर. sir. थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस लॉ को हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर में तो आपको इतना डिटेल में नहीं चाहिए, पर फिर भी. Okay, I take one more cylinder. Okay, in that cylinder, I take some other gas. Say for example, I take helium gas. You can take any gas. आपको जो gas चाहिए वो ले लो, helium लो. Okay, okay. Class, what is volume of oxygen? Anybody? इसको मालूम है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करते हैं? ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? इस यहाँ पे जो लिया है हम लोगों ने ऑक्सीजन का वॉल्यूम. Okay, anybody know how to find volume of a gas?
नो No, sir. No, sir. हाँ, आपको मालूम है, आप भूल गए। वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। अब जिस कंटेनर में गैस रखते हैं वही उसका वॉल्यूम होता है, एग्री या नहीं? शायद नहीं, आपको नहीं Yes. बताया या नहीं, ये न्यू बैच है आपका, शायद आपको नहीं बताया मैंने। Yes, वॉल्यूम sir. ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको क्या होता है, चलो 1 मिनट के लिए। थोड़ा समझो, हमारे पास एक छोटा सा ये कंटेनर है, राइट? मैं यहाँ पे कंटेनर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक समझो एक कंटेनर है, उसमें अंदर हमने रखा 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस रखा? ऑक्सीजन गैस। कितना? 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ओके, तो बस इस कंटेनर में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा? तो समझो इस कंटेनर का लेंथ है 1 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर, हाइट है 1 मीटर, तो प्लस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा? 1 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब कितना होगा? 1 meter मीटर cube. इसका 1 वॉल्यूम meter होगा, cube. इसका वॉल्यूम होगा, राइट? अंदर कितना गैस है? 10 ग्राम। 10 gram. ओके, तो प्लस अंदर जो गैस भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, उसका वॉल्यूम कितना होगा? प्लस एक 1 meter. 1 कितना? 1 1 meter meter cube. cube. 1 मीटर क्यूब। ठीक है, हम क्लब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा लेते हैं। समझो उसका लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 10 मीटर और हाइट है 10 मीटर। क्लब उसका वॉल्यूम कितना होगा बोलो? 30 meter cube. 30 या 1000? 1000. 10 इंटू 10 इंटू 1000. हाउ टू फाइंड वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मिनट, मैं लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो गया। हाँ, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1000 meter cube. 1000 meter cube. 1000 मीटर क्यूब। ओके, तो बस 1000 मीटर क्यूब बेस का वॉल्यूम है उस कंटेनर का। एक जस्ट अ सेकंड, गिव मी जस्ट अ सेकंड। कंटेनर का वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज 1000 मीटर क्यूब। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10,000 होता है, राइट? 1000 मीटर क्यूब। Yes. हाँ, तो अब ये पूरा गैस है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, वैक्यूम है पूरा। ये गैस हमने गैस यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया। अभी इसका इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 1000 meter cube. 1000। और मास और उसका वजन 10 gram. 10 gram. 10 ग्राम। 10 ग्राम, हाँ याद रखो, मास कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? Destroyed. तो 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहेगा, राइट? हाँ, तो Yes, प्लस sir. Yes, sir. वॉल्यूम के अंदर क्या था? स्पेस ऑक्यूपाइड, राइट? क्लास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल क्या है? बहुत पास पास है एक दूसरे से, बराबर ना? Yes, sir. कम Yes, जगह में sir. रहे। वॉल्यूम का अंदर होता है उनको वो कितना जगह ले रहे हैं, तो यहाँ पे कम जगह पे मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल कम जगह पे, तो ये बहुत पास पास रहेंगे। तब क्या करोगे? अगर उनको बड़े घंटे में रखोगे तो एक दूसरे से क्या जाएंगे, वो दूर जाएंगे, पर उतने ही रहेंगे, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा स्टेटमेंट क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द Container. कंटेनर। Container. ये समझा आपको स्टेटमेंट? Yes, Yes, sir. हाँ, मतलब गैस को आप जितने जगह पे रखोगे वो उसका वॉल्यूम होता है। तो आप गैस को बहुत कम जगह पे भी रख सकते हो और बहुत बड़ी जगह पे भी रख सकते हो। वो सब पूरा का पूरा स्पेस क्या कर लेता है? Okay. ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, सब लोग समझा? हाँ, Yes, sir. तो प्लस Yes, अब एक sir. क्वेश्चन है आपके लिए। ये पहला सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन भरा है उसका वॉल्यूम कितना है? पहले सिलेंडर में जो ऑक्सीजन उसका वॉल्यूम कितना है? तो क्या वही आंसर दोगे आप? क्या? वॉल्यूम ऑफ द Container. कंटेनर, Container. राइट? तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा कहाँ से कहाँ तक? उसके बेस से लेके जहाँ तक पिस्टन है वहां तक, राइट? क्योंकि गैस का हमने गैस को हमने कितनी जगह पे रखा है? गैस को हमने इतनी जगह पे रखा है, बराबर है? इतनी जगह पे, बराबर? Yes. तो कंटेनर का Yes, जो भी sir. वॉल्यूम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, वो किसका वॉल्यूम होगा? वही वॉल्यूम होगा किसका? गैस का, बराबर है? Oh, yes, sir. ऑक्सीजन का। तो से फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। कौन है? यूनिट वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर होता है। वॉल्यूम कितना गैस का? 5 लीटर। बताऊंगा आपको, यूनिट सब सिखाऊंगा आपको। तो बस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 5 लीटर। लीटर 5 किसके liter. अंदर? वॉल्यूम का, राइट? 5 लीटर अपने ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा गैस है? Oxygen. ऑक्सीजन। ओके, मतलब बाजू वाला कंटेनर ना, उसमें भी हीलियम है। कितना है? 5 लीटर ही है। कितना है? 5 liter. 5 liter. 5 लीटर, इसमें 5 लीटर। 5 दोनों का liter. देखो, हाँ, दोनों कंटेनर एग्जैक्टली सेम है
और दोनों का प्रेशर एग्जैक्टली सेम हाइट पे, ठीक है। तो ये भी 5 लीटर, ये भी 5 लीटर। प्लस सपोज ऑक्सीजन टेम्परेचर 300 केल्विन and this helium is also at temperature 300 Kelvin. Okay. Plus आपको मालूम है गैस के molecules are moving from one place to other place. Yes, sir. They are not at rest. एक जगह पे रुकते नहीं, वो घूमते रहते हैं। और plus when they move from one place to other place, they collide with each other. आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं, right? Yes, sir. And they also collide on the walls of the container. जो containers के wall के ऊपर भी टक्कर मारते हैं। And plus they exert what? They exert pressure. वो क्या exert करते हैं? Pressure. तो क्लास प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो क्लास इस एरिया के ऊपर, इस कंटेनर के एरिया के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो क्लास अभी ये जो गैस है अंदर, ऑक्सीजन का गैस है यहाँ पे, उसका प्रेशर समझो कितना है? 1। क्लास प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। क्या यूनिट होता है प्रेशर का? एटमॉस्फेयर। इसको लिखते हैं ATM। आपको 5 मिनट में भी सिखाऊंगा ये सब प्रेशर के यूनिट्स वगैरह। सर हाँ सर एक बार थोड़ा फिर से समझाना। क्या बताओ सर थोड़ा प्रेशर। पहले समझाना सर, थोड़ा पहले से फिर से। हाँ हम लोग बात कर रहे हैं अवोगाड्रोस लॉ की। यस सर। तो यहाँ पे एक सिलेंडर में हमने क्या लिया है? कौन सा गैस लिया है? ऑक्सीजन। ओके। तो उस ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है? तो सिलेंडर में जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल है इस पिस्टन तक जितना वॉल्यूम अवेलेबल है, वो वॉल्यूम कितना किसका है? गैस का है। तो से फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा नंबर, क्या समझो वॉल्यूम कितना है? 5 5 लीटर। लीटर। ठीक है। तो इस कंटेनर में कितना ऑक्सीजन है? 5 लीटर। लीटर वो किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। बाजू में हीलियम है, वो भी कितना लिया हम लोगों ने? 5 लीटर। समझो टेम्परेचर कितना ऑक्सीजन का? 300 केल्विन। और हीलियम का भी कितना है? 300 केल्विन। प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं यूनिट में, कौन से? एटमॉस्फेयर में। तो क्लास यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन गैस है उसका प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 ATM। ATM का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर। और क्लास यहाँ पे जो हीलियम है उसका प्रेशर भी कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, ये दोनों गैस के 3 प्रॉपर्टीज सेम है, क्या क्या? उसका वॉल्यूम बराबर है? यस सर। दोनों गैस का वॉल्यूम 5 है, राइट? दोनों गैस का टेम्परेचर टेम्परेचर। 300 है, बराबर है? और दोनों गैस का Yes, sir. प्रेशर प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर, राइट? तो ये 3 चीजें सेम है गैसेस की। तो क्लास अवोगाड्रो बोलता है अगर आपके पास कोई भी 2 गैस हो या कितने भी गैसेस हो, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी सेम है, तो क्लास उनके अंदर होने वाले मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्या होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो क्लास अगर इस कंटेनर पहले सिलेंडर नंबर 1 में अगर आपके पास ऑक्सीजन के x मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्लास सेकंड कंटेनर में हीलियम के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? आप बोलो। X molecule। उतने होंगे, राइट? Yes, sir. दिस लॉ इज कॉल्ड एज व्हाट? अवोगाड्रोस लॉ। Avogadro's law. तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आइडेंटिकल मतलब क्या? सेम ना? Yes, sir. या फिर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Molecule. वापस बोलता है इंग्लिश में यही स्टेटमेंट, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर क्या है? सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, राइट? इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ molecules। molecules. So this law is called as what? Avogadro's लॉ। ठीक है। इसका दूसरा स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहाँ पे सीखना है? स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, अभी बता दो आपको चलेगा वो वाला, दूसरा वाला Yes, बहुत sir। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. ये तो सिर्फ स्टेटमेंट के लिए, ये इसका यूज होता भी नहीं इस लॉ का, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं वो दूसरा वाला लॉ ज्यादा यूज होता है, मतलब वही यूज होता है प्रैक्टिकली। तो हम लोग, मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस of temperature and pressure, equal volumes, मतलब कौन सा गैस? कोई भी गैस, राइट? ऑफ ऑल गैसेस, राइट?
Yes, sir. contain equal number of molecules. दिस इज एवोगाड्रोस लॉ जो अपने चैप्टर में तो अभी यही लॉ अगर आपको सीखना है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में, तो क्लास एक काम करता है, मैं यहाँ पे एक ही गैस लेता हूँ। कौन सा गैस लेता हूँ यहाँ पे? हीलियम, राइट। ये अंदर अंदर कौन सा गैस है? हीलियम गैस है। एक ही कंटेनर देखो, अभी दूसरा वाला देखो, पहला वाला मत देखो। लेटेस्ट ओनली अबाउट वन कंटेनर, ये हीलियम का कंटेनर देखो। तो अंदर गैस है, अंदर कितने मॉलिक्यूल्स बोलो यहाँ पे? X molecule. वॉल्यूम 5 लीटर है, टेम्परेचर 300 है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, राइट। Yes. तो क्लास ये मॉलिक्यूल्स है गैस के। ओके क्लास बाहर कुछ है यहाँ पे? इस सिलेंडर के बाहर कुछ है? No. हाँ तो क्लास है। नो। बाहर क्या है? बाहर एयर है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट Gases. gases. तो क्लास तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, वो भी मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। Yes, sir. ओके दे आल्सो कोलाइड विद ईच अदर Yes, sir. and they also collide on the surface of the piston, right? Yes, sir. तो क्लास ये अंदर से गैस के मॉलिक्यूल है जो पिस्टन के ऊपर सरफेस कोलाइड कर रहे हैं। तो क्लास ये मॉलिक्यूल का अंदर के मॉलिक्यूल गैस के, वो पिस्टन को क्या क्या करेंगे? कोशिश करेंगे ऊपर ढकेलने की, राइट। Yes. और बाहर का एयर है, वो क्या करेगा? पिस्टन को अंदर नीचे ढकेलने की। ढकने. ओके अब देखोगे ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये सब आपको यही सीखना है स्टेट्स ऑफ मैटर में, सब गैस लॉज में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह में। तो आपको ये समझेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो जो अंदर के गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे? दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। Another. Okay, they collide with each other, and when they collide with each other, they also collides on the surface of the piston, right? तो अगर Yes, पिस्टन sir. को नीचे से गैस के मॉलिक्यूल ऐसा धक्का मारा तो पिस्टन कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। ओके बाहर कौन है? एयर के मॉलिक्यूल, वो भी घूम रहे हैं, उसमें धक्का मारा तो पिस्टन कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा। तो क्लास समझो अंदर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। कितना है? 1 atmosphere. हमने लिखा है 1 एटमॉस्फेयर। और क्लास बाहर का प्रेशर भी कितना है? 1 atmosphere. 1 atmosphere. तो क्लास पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे आएगा? Stable रहेगा. Move नहीं करेगा. स्टेबल रहेगा, उसी जगह पे रहेगा, राइट। क्लास अंदर प्रेशर समझो 10 होता और बाहर 1 होता तो नीचे जाता. नीचे जाता है. अंदर 10 है, अंदर 10 है और बाहर 1 है, ऊपर ऊपर जाता जाता. जाता। अंदर प्रेशर ज्यादा है ना। Yes, sir. है. Yes, sir. ये मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो ज्यादा ऊपर जाएगा। और अगर बाहर 10 होता और अंदर 1 होता तो नीचे जाता. जाता। तो क्लास फिलहाल दोनों प्रेशर सेम है, राइट। तो इसलिए पिस्टन एक ही जगह पे रुका हुआ है। ओके क्लास मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पे? X है। X molecule. हाँ क्लास प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल के? एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का मारते, राइट। तो Yes, क्लास में sir. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्लासरूम है जिसका कैपेसिटी 50 स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट का है? 50 स्टूडेंट 50. का। तो क्लास और क्लास का एरिया कितना समझो? 100 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है क्लास का, ठीक है। कितना है? 100 या फिर हम लोग ज्यादा लेते हैं थोड़ा, 400 मीटर स्क्वायर क्लास का एरिया है। तो क्लास इस क्लास में अगर मैं और 50 स्टूडेंट बैठाता हूँ सेम क्लास में, तो क्लास क्या होगा? कैपेसिटी 50 का है, मतलब 50 लोग कैसे तो बैठ रहे हैं, इसमें और मैं 50 स्टूडेंट डालता हूँ, क्या होगा? मारामारी हो जाएगा ना। हाँ. Yes, sir. एक दूसरे को धक्का देंगे जोर जोर से, टू हट ऐसे करेंगे तो क्लास क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, राइट। Yes. तो क्लास में एक काम करता हूँ, मैं बोलूंगा मुझे और 50 बच्चे क्लास में लेने हैं, तो मैं बीच का दीवार तोड़ देता हूँ और मैं क्लास का एरिया भी 400 की जगह कितना कर देता हूँ? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास अभी प्रेशर बढ़ेगा क्या? No, sir. नहीं। No, sir. तो क्लास प्रेशर ना बढ़े, मुझे इसलिए क्या बढ़ाना पड़ा? Area. 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 एरिया बढ़ाना पड़ा, राइट। वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा, बराबर ना। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलो आपको बताता हूँ, आपको समझेगा ये क्या। अदर स्टेटमेंट आपको रट्टा मारना तो बहुत सिंपल चीज है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अंदर कितने मॉलिक्यूल है गैस के? X। तो हम लोग क्या करेंगे, और थोड़े मॉलिक्यूल डालेंगे अंदर गैस के, इसमें थोड़ा कलर दूसरा रहेगा, तो वही मॉलिक्यूल से कलर दूसरा हम लोग और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, राइट। आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. अब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बढ़े तो क्लास क्या होगा? मॉलिक्यूल के लिए जगह कम पड़ रहा है, राइट। Yes, sir. तो क्लास क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? Increase. बढ़ेगा। तो क्लास प्रेशर ना बढ़े इसलिए पिस्टन क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा, राइट। Yes. हाँ या Yes, ना। sir. तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम था? यहाँ पे वॉल्यूम कितना था? 5 लीटर था, राइट। यहाँ पे Yes, वॉल्यूम sir. 5 लीटर था। तो अगर अंदर मॉलिक्यूल और भरोगे तो क्लास क्या होगा?
अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर ना बढ़े इसलिए पिस्टन क्या होगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। पिस्टन क्या किया, थोड़ा सा ऊपर चला ऊपर गया, गया। तो पिस्टन गोज लिटिल अप। तो अगर पिस्टन नहीं जा पाता तो क्या होता है बच्चों लोग, पिस्टन समझो पिस्टन नहीं है, ये क्या है, ढक्कन है, तो क्या होता है, आप मॉलिक्यूल डाले हुए अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ता रहता। क्योंकि देखो उतने जगह पे आप ज्यादा लोगों को डाल रहे हो, राइट, हाँ या ना। यस हाँ, तो पिस्टन कैसे अपना मूवेबल है, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, राइट, तो अंदर जगह कम पड़ रहा है, तो पिस्टन को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा करेंगे। सा ऊपर, हम लोग आप वो पिस्टन खुद ही ऊपर चला जाएगा, बराबर है, पिस्टन को लिटिल अप, थोड़ा पिस्टन अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, अपने आप गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, ज्यादा जगह अवेलेबल होगा। तो जब भी यस दूर दूर थे, ये जो बहुत ज्यादा पास थे, अभी क्या हो गया, थोड़ा दूर दूर जाके रहेंगे, बराबर ना। यस तो क्लास अभी क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो यस गैस पहले कम जगह पे अवेलेबल प्रेजेंट है, अभी क्या है, थोड़ा ज्यादा जगह ले आया उन्होंने, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा जगह लिया उन्होंने, एग्री। यस तो क्लास अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे करते करते हम लोग क्या किया, पहले पिस्टन कहाँ पे था, ओके, 5 लीटर। तो जब 5 लीटर पे था, तो क्लास हम लोग ऐसे करते करते क्या करेंगे, हम लोग अंदर मॉलिक्यूल भरते रहेंगे, और मॉलिक्यूल भरते रहेंगे, और मॉलिक्यूल भरते रहेंगे, और पिस्टन ऊपर जाता रहेगा, एग्री। यस हाँ, तो क्लास पिस्टन ऊपर जाता रहेगा, हम लोग अंदर मॉलिक्यूल भरते रहेंगे, तो क्लास फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मिनट, जस्ट अ मिनट, तो वो जब पिस्टन यहाँ पे था एट पॉइंट ए, तो गैस का ये ना, तो गैस का वॉल्यूम कितना था, 5 5 लीटर। लीटर, राइट। तो हमने क्या किया, और गैस भरना शुरू किया अंदर, तो क्लास गैस भरना शुरू किया तो प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया तो क्या, प्रेशर को कम करने के लिए पिस्टन क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा ऊपर है, जा राइट, अब जा रहा है जा रहा है कर रहा है, तो हम लोग कब तक ये करेंगे, जब पिस्टन एक जगह पे जाएगा और जहाँ पे गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 लीटर, कितना हो जाएगा, 10 लीटर, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रुक गए हम लोग। तो दो चीजें चेंज नहीं हो रही, गैस का टेम्परेचर उतना ही है, कितना, पहले भी 300 था, अभी भी कितना है, 300। 300 है, प्रेशर भी कितना है, 1 है। क्लास प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर राइट, मूव हो रहा है। इसलिए प्रेशर, ज्यादा मॉलिक्यूल जा रहे हो तो आप उनके लिए ज्यादा जगह क्या कर रहे हो, अवेलेबल कर रहे हो, पिस्टन को ऊपर ढकेल के, राइट, तो प्रेशर नहीं बढ़ रहा, यस राइट। हाँ, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 5 का कितना हो गया, 10। 10 हो गया। हाँ, तो जब वॉल्यूम 5 था तो कितने मॉलिक्यूल थे अंदर, x थे, राइट, तो जब यस वॉल्यूम 10 हो जाएगा तो अंदर मॉलिक्यूल होंगे 2x। 2x। बस इसका मतलब क्या है, बताओ मुझे। 2 At- times the first हाँ, one। तो बस अगर आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल कर दिया, राइट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, डबल हो गए, प्रोवाइडेड आप दो चीजों को हाथ नहीं लगा रहे, टेम्परेचर एंड प्रेशर को। प्रेशर। तो क्लास ये लॉ बोलता है एट कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस ब्रैकेट में सिंबल लिखता हूं मैं v, राइट, इज बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecules। वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वॉल्यूम डबल किया तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल। वॉल्यूम 10 टाइम्स किया तो मॉलिक्यूल्स भी कितने हो जाएंगे, 10 times। वॉल्यूम हाफ किया तो मॉलिक्यूल भी कितने हो जाएंगे, हाफ। हाफ। उसको जब लोग, हाँ, but constant pressure volume of gas is directly proportional to molecule। number of molecules, बराबर ना। तो class this is very important laws, Avogadro law, number of volume of gas is directly proportional to number of molecules। molecule। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग, मैथमेटिकली तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस v बराबर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए सिंबल क्या लिखा है, v लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ molecules। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लास क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है, कांस्टेंट है, दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, अगर चेंज हुआ तो लॉ एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो अब इस लॉ को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं लास्ट। हाँ,
क्लास 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में? 6.022 into 10 raised to 23. 23. 23 मॉलिक्यूल्स राइट। तो क्लास 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 10 मोल में? 10 into 10 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules. तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को 10 टाइम्स करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 10 टाइम्स हो जाएंगे। Yes, Yes, sir. sir. इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? डायरेक्टली Proportional. Proportional. So number of molecules is number of molecules of gas is directly proportional to number of Moles. moles. ना number of moles का symbol क्या होता है standard? Capital M. Small n. हाँ. Capital M molar mass के लिए होता है। क्या symbol होता है moles का? Small n. Small n. Small n. तो क्लास अभी बताओ मुझे, volume is proportional to number of molecules, right? And number of molecules Yes. is proportional to number of moles. Moles. अपने स्कूल में सीखा है, if A is proportional to B and B is proportional to C, it means A is proportional to C. बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. So class, can I make a statement? Volume of gas is directly proportional to number of moles of gas. Yes, sir. Yes, sir. Volume is proportional to number of molecules. Number of molecules proportional to number of moles. So volume is proportional to number of moles, provided temperature and pressure both are Constant. Constant. So class, this is very useful statement of what? Avogadro's law. Volume of gas is directly proportional to number of moles. Clear है? Yes, sir. हाँ क्लास, Yes, sir. अगर आप प्रेशर को क्लास मुझे बताओ, सिंपल है, अगर यहाँ पे पिस्टन नहीं होता, अगर यहाँ पे ढक्कन होता, समझे पिस्टन मूव नहीं करता, तो क्लास ये लॉ चेंज, यहाँ पे पिस्टन ये पिस्टन नहीं होता, समझे एक सील्ड है, पूरा सील्ड है, तो क्लास आप अंदर अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाते जाओगे तो क्लास क्या होगा? अब भाई पिस्टन ऊपर जा नहीं पाता, कम जगह पे बहुत सारे, तो क्या बढ़ेगा? Pressure. 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 हाँ, पर क्लास अगर पिस्टन है तो पिस्टन ऊपर जा सकता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. पिस्टन ऊपर जाएगा और क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह अवेलेबल करेगा, तो क्लास अभी प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा उसकी जगह पे? वॉल्यूम Volume. बढ़ेगा। तो अगर आप गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने नहीं देते तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? Yes, And that's sir. why volume of gas is directly proportional to number of moles. Moles. This is called as the Avogadro's law. आपको इस चैप्टर में Avogadro law ऐसा नहीं मिलेगा, वो आपको कहाँ पे मिलेगा ऐसा वाला लॉ? स्टेट्स ऑफ मैटर में। ओके? Yes, sir. अपने चैप्टर में कौन सा Avogadro law है? ये वाला स्टेटमेंट। क्या यहाँ पे दो गैस को कंपेयर करेगा लॉ क्या बोलेगा? अगर आपके पास दो गैस है या 10 हो, अगर उनका प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो उसके अंदर होने वाले मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? Same. सेम रहेंगे। तो दिस इज एवोगैड्रो लॉ। दो तरीके से एवोगैड्रो लॉ बोल सकते हैं, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ओके, आपको कुछ पूछना है, डाउट्स वगैरह बिफोर आई प्रोसीड? No, sir. No, sir. ओके, नो, वेरी गुड, चलेगा। क्लास डाउट्स होगा तो पूछो बिंदास, जो भी आपको छोटा सा डाउट भी पूछ सकते हैं आप। ओके क्लास, नेक्स्ट लॉ देखें हम लोग, गे-लुसैक्स लॉ। दो साइंटिस्ट है यहाँ पे, of combining volumes. Gay-Lussac's law of combining volumes. तो प्लस मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, नाइट्रोजन गैस आप रिएक्ट करते हो हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है? प्लस प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? Nitrogen hydro. नहीं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या मिलता है? आपने कभी किया रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन? Ammonia. अमोनिया मिलता है। वेरी गुड, क्या मिलता है आप लोग को? अमोनिया मिलता है, बराबर ना? तो मैं जानबूझ के रिएक्शन नहीं लिख रहा क्योंकि उस जमाने में रिएक्शन मालूम नहीं थे। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, अमोनिया का NH3 होता है, वो तब मालूम नहीं था। तो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस एंड व्हाट वी गेट? अमोनिया। तो अभी थोड़ा सा चीज देखो, बहुत केयरफुल देखो। प्लस इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है, कौन सा गैस है? Nitrogen gas. गैस। कितना समझो हमने लिया? 1 लीटर। कितना नाइट्रोजन लिया? 1 liter. 1 liter. प्लस में हमने क्या डाला? हाइड्रोजन डाला। प्लस नाइट्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा?
रिएक्शन और क्या बनाएगा अमोनिया। राइट। तो बस 1 लीटर नाइट्रोजन को या फिर 1 लीटर लीटर किसके अंदर वॉल्यूम का बरा ना, यस 1 लीटर नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के आपको कितना हाइड्रोजन लगता है 3 लीटर। कितना लगता है 3 लीटर। आप बोलोगे ऐसे कैसा, तो उस जमाने में उन्होंने क्या किया था, एक्सपेंड करके फाइंड किया था। मतलब 1 लीटर नाइट्रोजन लिया, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन डाला, चेक किया कितना लगता है, फिर थोड़ा और डाला, थोड़ा और डाला, फिर उनको पता चला क्या 3 लीटर हाइड्रोजन से क्या रिएक्शन कंप्लीट होता है, राइट, बेस्ड ऑन वॉज एक्सपेरिमेंट्स, राइट ना। पर आपको बताऊंगा ये नंबर कहाँ से है, कैसे आता है, इस अभी हमें मालूम है कैसे करते हैं। हाँ प्लस यानी कैसे अमोनिया कितना बनेगा 4 लीटर 2 4 लीटर बोल रहा है, राइट। 2 4 लीटर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे अमोनिया बनेगा 2 लीटर। कितना बनेगा 2 लीटर। तो व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स 4 ना, 1 + 3 एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट 2 लीटर। 2 लीटर तो क्लास रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वॉल्यूम सेम है या नहीं है, नहीं है। नहीं है। और क्लास जरूरी भी नहीं होता, राइट। क्लास हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। पर क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता। रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम अलग हो सकता है। सुना आपने क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम अलग हो सकता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड, राइट ना। यस सर। हाँ तो क्लास प्रोडक्ट को कम जगह लग सकता है, रिएक्टेंट को ज्यादा लग सकता है, पॉसिबल है। तो क्लास वॉल्यूम का कोई ऐसा लॉ नहीं है। तो क्लास 1 लीटर 3 लीटर 2 लीटर। ओके क्लास, ये अगर रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं एट सेम, सब ये तीनों गैसेस, कौन सा गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, अगर तीनों की तीनों गैस क्या है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, then class what is ratio of volumes, तीनों का ratio of volumes 1:2:3:2 1:2 क्लास क्या है रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो है। यस तो क्लास यही लॉ बताना चाहता है। क्लास अगर किसी भी रिएक्शन में अगर गैसेस रिएक्ट होंगे या फिर गैसियस प्रोडक्ट बनेगा, राइट, तो वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस जो भी गैसियस स्टेट में, क्लास अगर यहाँ पे लिक्विड या सॉलिड होगा तो उनको कंसिडर नहीं करना। रिएक्शन में किसको कंसिडर करना, आपको सिर्फ जो गैसियस है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इस केस में दोनों भी गैसियस है, रिएक्टेंट भी गैसियस है, प्रोडक्ट भी गैसियस है, या फिर ऐसा हो सकता है एक ही रिएक्टेंट गैसियस है। तो जितना गैस है उसकी ही बात करो, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड की बात करो मत। तो व्हेन गैसेस कंबाइन, राइट, तो यहाँ पे कौन से गैसेस कंबाइन हो रहे हैं बोलो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में व्हेन गैसेस कंबाइन, तो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, प्लस यहाँ पे कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया। तो प्लस रिएक्टेंट के लिए चलेगा, प्रोडक्ट के लिए। तो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, दे डू सो, प्लस ये इंग्लिश है, डू सो मतलब इस तरीके से कंबाइन होते हैं फिर प्रोड्यूस होते हैं, दैट देयर वॉल्यूम्स आर ऑलवेज इन, बोलो सिंपल होल रेशियो। सिंपल होल वॉल्यूम्स आर ऑलवेज इन सिंपल रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो। प्लस कुछ मिसिंग है अभी, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट है, इसको आपको 0 मार्क मिलेगा, आपने इतना लिखा तो कुछ कंप्लीट। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम। प्रोवाइडेड, वेरी गुड, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर and pressure. Is it clear now? यस सर। When gases combine or are produced, they do so, वो इस तरह से कंबाइन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं कि उनका वॉल्यूम कैसा होता है, ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर रेशियो। और ये तभी पॉसिबल है अगर गैसेस क्या होता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्लास एक्चुअली ये गेल-लुसाक्स लॉ है ना, ये आपका एवोगाड्रो लॉ है ना, उसी का दूसरा फॉर्म है देखा जाए तो। मैं बताता हूँ कैसे। तो क्लास
ठीक है, उनको मालूम नहीं था रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया कैसे था, आपको मालूम है ना? टेल मी रिएक्शन नाइट्रोजन क्लोराइड नाइट्रोजन N2 राइट प्लस H2 एंड गिव्स यू अमोनिया प्लस रिएक्शन को मालूम है आज के डेट में? यस, हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड गिव्स यू अमोनिया, ये रिएक्शन है। प्लस रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, बोलो क्या रिएक्शन बैलेंस है? Yes, sir. बैलेंस Yes, sir. है। हाँ, प्लस इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कोई बताएगा? मैंने लास्ट टाइम बताया आपको कैसे पढ़ना है इस रिएक्शन को। 1 mole of nitrogen Nitrogen, plus 2 हाँ, mole of 3 moles of 3 moles of hydrogen gives you 2 moles of 2 moles of ammonia. तो क्लास यहाँ पे रेशियो ऑफ मोल्स कितना है? रेशियो ऑफ मोल्स 1:3 क्लास अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम राइट। Volume. तो क्लास अगर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्लास वही जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो किसका होगा? Volume का. वॉल्यूम का भी होगा राइट। 1:3:2 तो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना अलाउड नहीं है क्योंकि उस जमाने में ये रिएक्शन उनका इसका बैलेंसिंग उस जमाने में मालूम नहीं था, ठीक है? वो ये सब किसके ऊपर बेस्ड था? ऑब्जर्वेशन के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। चलो आप मतलब ये रफ में करना, अगर आपको लिखना है ना एग्जांपल कोई दूसरा तो आप रफ में लिख सकते हो। तो क्लास माय क्वेश्चन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस react with oxygen gas and gives you sulfur trioxide gas। तो क्लास अभी इसको कैसे करेंगे? ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्लास ओके इसका तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम मतलब 2 लीटर लोगे तो ये कितना लगेगा आपको? 1 लीटर लगेगा राइट। और अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनेगा? ये भी 2 लीटर ही बनेगा। आप बोलोगे कैसे 2:1 2:1 कैसे? तो क्लास व्हाट इज सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला? SO2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 राइट एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। क्लास आपको ऐसे करना है तो ये रफ में करो। क्लास इसको बैलेंस करो, रिएक्शन को बैलेंस नहीं है यहाँ पे, करो बैलेंस। तो 2SO2 + O2 गिव्स यू 2SO3। चेक करो क्लास यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है बराबर ना। माय क्वेश्चन Yes, इज क्या sir. रिएक्शन बैलेंस है? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज रेशियो ऑफ मोल्स? यहाँ पे 2:1:2 राइट। Yes. Yes, sir. और क्लास ये अपना गेल-लुसाक्स लॉ में कब अब यूज करते हैं? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। Pressure. तो क्लास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर राइट। Yes, sir. तो Yes, अगर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 2:1:2 है राइट, तो वॉल्यूम का रेशियो भी कितना होना चाहिए? 2:1:2। 1:2. तो क्लास अब कोई भी रिएक्शन लो, अगर गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट है तो जो गैसेस होंगे रिएक्शन में वो हमेशा क्या हो गया? इन अ सिंपल होल Whole नंबर number ratio. रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। बराबर है? Yes. तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या फिर गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। कभी-कभी सिर्फ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स लिखते हैं, कभी-कभी साइंटिस्ट का नाम भी लिखते हैं गेल-लुसाक्स लॉ। अब जेडब्ल्यू लिखो तो गेल-लुसाक्स लिखा रहेगा, स्टेट बोर्ड के बुक में क्या लिखा रहेगा? सिर्फ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ओके, तो हमने कितने लॉ सीखे बताओ मुझे? पहला लॉ सीखा हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास Law of राइट। conservation of mass. दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा अवोगाड्रोस लॉ और पांचवा गेल-लुसाक्स लॉ। तो ये 5 लॉ हमने सीखे बराबर ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने स्टार्ट किया था पहले मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर राइट। तो मैं पहले देखा था मास लिखा था हम लोगों ने ना, आपको बोला था लिखने के लिए मास यूनिट ऐसा यूनिट क्या था मास का? केजी बराबर है। kg. तो क्लास चाहे तो हम लोग एक बार वापस लिखेंगे क्लास। तो 1 ग्राम कितना मिलीग्राम होता है? 1000. हाँ 1000 10⁻³ मिलीग्राम। ग्राम से मिलीग्राम बड़ा है ना, छोटा है सॉरी। तो बड़े यूनिट को जब छोटा यूनिट करते हैं तो पावर क्या आता है? Minus. Constant. प्लस में होता है। ग्राम बड़ा है मिलीग्राम बड़ा बच्चे लोग? Gram. ग्राम। तो व्हेन यू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट आपका पावर क्या होगा? 10 का प्लस में होगा। Positive. हाँ हाँ, राइट।
1 kilogram. How many gram? 1000 grams. 1000 ग्राम। 1000 gram. किलोग्राम से ग्राम छोटा है, तो प्लस when you convert bigger unit into smaller unit, power will be positive, right? Positive. हाँ, तो प्लस ग्राम से मिलीग्राम से ग्राम 10⁻³ वापस ग्राम से किलोग्राम वापस 10⁻³ प्लस 1 kilogram will be how many milligram? 10 raised to 6. 6. ग्राम, ठीक है, हमने लिखा है ऑलरेडी। तो उल्टा करेंगे, 1 milligram is how many grams? 10 raised to minus 6 milligram. Gram. Okay, 1 gram is how many kilogram? 10 raised to minus 3. 3. Minus 3 gram. Okay, 1 kilogram is how many milligram? 10 raised to 10 6. 6 minus 6. That's right. 1 milligram is how many kilogram? उल्टा लिखना, sorry. 1 milligram is how 10 10 raised to minus 6 बराबर है चलो। क्लास पर ये सब यूनिट बहुत बड़े होते हैं एटम्स के लिए क्लास। तो अगर हम लोग एटम का वजन करना है या मॉलिक्यूल का करना है, हम लोग लेते हैं डाल्टन, राइट? Yes, sir. 1 Yes, डाल्टन इज एनीबॉडी स्टिल रिमेंबर 1 डाल्टन कितना ग्राम होता है? 1.994 1.6605 into 10⁻⁻24 ग्राम। क्लास यही था ना? 1 डाल्टन, वो आप बोले 1.994, वो कार्बन के एटम का मास है, एक एटम का, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 डाल्टन मिलता है। प्लस किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.6605 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो क्लास ये सब हो गया किसके यूनिट्स? मास का। एनी डाउट हियर? No, sir. No, sir. Class next is temperature. Next property of matter is temperature. Class, how to measure temperature of matter? In Kelvin. How to measure? टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर। Very good. Thermometers, right? तो क्लास, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। एक है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है Kelvin. अगर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, इन ऑल क्वेश्चन टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन। सब में केल्विन में लेना पड़ता है। तो इफ यू आर गिवन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, आपको सब उसको किस में करना पड़ता है? Kelvin. केल्विन में। Kelvin. तो अगर कैसे करते हैं, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में से डेरिवेशंस है, पर हमें अभी यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट यूज करना है टेम्परेचर इन केल्विन। क्लास केल्विन को डिग्री केल्विन लिखते नहीं है, ये रॉन्ग है। डोंट राइट 0, केल्विन सिर्फ के होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन नहीं होता। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो क्लास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, चार्ल्स लॉ में करेंगे डिराइव, ठीक है। तो फिलहाल आपको सीधा यूज करना है, ये बाहर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लगता है। तो आई गिव एग्जांपल, इफ आई आस्क यू 100 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मेनी केल्विन, सब कैसे करोगे बोलो? तो प्लस 100 प्लस 273.15 मतलब कितना केल्विन होगा वो? 373.15 केल्विन। समझा आपको? प्लस दूसरा, इफ आई राइट -100 डिग्री सेल्सियस, प्लस -100 डिग्री होता है क्या? होता है, मैं आपको बताता हूँ, होता है। वो भी स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रूव करोगे आप। तो प्लस कितना आंसर क्या आएगा आपका? -100 प्लस 273.15, ठीक है। कितना आएगा आंसर आएगा आपको? 173.15 केल्विन। ओके, तो यार देखो डिग्री सेल्सियस स्केल में लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और केल्विन स्केल में लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। कितना होता है? 0 केल्विन। याद रखो, ये आप सब प्रूव करने वाले हो, पर अभी नहीं, अभी इस चैप्टर में नहीं, किसी सर ऑलरेडी सर ने स्टार्ट किया है चैप्टर आपको, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लास, हाँ। तो दूसरा है टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन, प्लस ये लिख लो आप टेम्परेचर वाला मास का तो हमने लिखा था ऑलरेडी, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नोट्स में मैंने ये इंक्लूड नहीं किया है।
प्लस 32 प्लस ये फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना, कोई भी चैप्टर में नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करना है, ठीक है, डायरेक्टली रेडीमेड। तो क्लास एग्जांपल लेता हूं मैं। प्लस अपना बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 37, चलो एक काम करते हैं 35 डिग्री लेते हैं, ज्यादा इजी ना लेते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है, चेक करो। तो क्लास क्या करोगे, 9/5 इंटू 35 बराबर ना, 63. प्लस 32, 5 7 जा 35 राइट, 9 7 जा 63 plus 32. प्लस 32 कितना आएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। Yes. प्लस किसी को बहुत हाई फीवर होता है, बहुत हाई फीवर होता है राइट, तो हम बोलते हैं टेम्परेचर कितना 101 102 ऐसा बोलते हैं ना। Yes, sir. If I किसी को टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो बस कितना आएगा 9/5 इंटू 40। आपको मालूम है थर्मोमीटर का स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। Yes, sir. हाँ 9 8 जा 72 प्लस 32 प्लस कितना होगा 104, बहुत हाई टेम्परेचर राइट। प्लस डोंट से 104 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस पे आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जो 104 103 होता है किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। आपका एक क्वेश्चन जेई में आ चुका है, अपनी बुक में भी दिया है उन्होंने। प्लस एक टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होता है, एक टेम्परेचर ऐसा है कौन सा जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होता है, प्लस वो कितना होता है -40 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं -40 डिग्री सेल्सियस, तो -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना आएगा बोलो, तो 9/5 इंटू -40 बराबर ना, प्लस 32, 5 8 जा 40 एंड 9 8 जा 72 पर माइनस साइन के साथ राइट, यहाँ पे माइनस साइन है देखो, है ना। -72 पर 32 कितना आता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो प्लस 40 डिग्री में और फ़ारेनहाइट में सेम होता है बराबर, तो याद रखो Yes, sir. ये दिस इज टिपिकल एग्जांपल, आपके एमसीक्यूज में भी है इस चैप्टर के ये क्वेश्चन। तो व्हिच टेम्परेचर सेम ऑन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इसका आंसर इज 40। ओके, एनी डाउट हियर? No, sir. No, sir. तो क्लास अपना हो गया, दो चीज है, क्या मास हो गया, दूसरा क्या हो गया टेम्परेचर हो गया, Temperature. तीसरा प्रॉपर्टी मैटर का होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के लिए ऐसा होता है मीटर क्यूब, क्या होता है मीटर क्यूब, स्मॉल m मीटर क्यूब। प्लस अब अगर उसका सॉलिड समझे, आपके पास ब्लॉक है कॉपर का मेटल है, क्लास इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ द Length क्यूब राइट, into breadth. Length to length to लेंथ टू height. ब्रेडथ टू हाइट, तो बस सॉलिड्स का वॉल्यूम मेजर करना बहुत इजी होता है राइट। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम राइट, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। प्लस समझो ये, समझो इसका वॉल्यूम, समझो कितना है, समझो इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, कितना वॉल्यूम है इसका 5 liters. 5 डीएम क्यूब, चलो 5 डीएम क्यूब लिखता हूँ मैं, ठीक है 5 डीएम क्यूब है। प्लस इसको मैं एक बड़े ग्लास में रखता हूँ इसको, प्लस उसमें इसका वॉल्यूम कितना होगा, उतना ही होगा ना, 5 dm cube. अरे वो उसका उसका शेप भी कुछ नहीं है, उतना ही उसका डेफिनेट शेप है, तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है बराबर है। Yes. Yes, sir. ओके, प्लस अभी मेरे पास एक छोटे कंटेनर में 2 लीटर मिल गए, कितना मिल गया 2 लीटर, उसको मैंने बड़े कंटेनर में रखा, मतलब वहां पे उसका वॉल्यूम कितना होगा 2 liter. 2 लीटर ही होगा राइट, वेरी गुड, आर यू क्लियर। Yes. Yes, बस sir. मेरे पास बड़े छोटे कंटेनर में 2 लीटर एयर है, एयर गैस है, उसको मैंने ट्रांसफर किया बड़े कंटेनर में 5 लीटर के कंटेनर में, उसमें इसका वॉल्यूम कितना होगा 5 liter. 5 liter. वेरी 5 गुड, समझा liter. तुम लोग को। तो गैस का वॉल्यूम चेंज होता रहता है, पर सॉलिड और लिक्विड का गैस वॉल्यूम चेंज नहीं होता. नहीं होता। तो क्लास वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, तो क्लास तो सब 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वॉल्यूम के लिए, सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा डेसीमीटर क्यूब और तीसरा मीटर क्यूब, तीनों में हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं मोस्टली।
चलो लेट मी गिव एग्जांपल। प्लस समझो हमारे पास एक कंटेनर है जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, हाइट है 1 सेंटीमीटर, राइट। तो उसका वॉल्यूम कितना है? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, वेरी गुड। वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर डेसीमीटर में लिया तो बच्चों लोग, ये लेंथ है 1 डेसीमीटर, ब्रेड्थ है 1 डेसीमीटर, हाइट है 1 डेसीमीटर, वॉल्यूम कितना होगा अभी? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट। 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब 1 डेसीमीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से मैं 1 डेसीमीटर निकालता हूँ तो उसके जगह पे सेंटीमीटर में क्या लिखूँ मैं, बोलो? 10 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर। क्लास ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा अभी? 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर। सेंटीमीटर। 1000 क्या? सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। cube. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, राइट। हाँ, प्लस बड़ा क्या था? डेसीमीटर सेंटीमीटर? डेसीमीटर बड़ा होता है। डेसीमीटर। तो 1000 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। समझा आपको ये मैंने क्या बोला? Yes sir. 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा होता है, तो इसलिए बड़े यूनिट को छोटा यूनिट जब कन्वर्ट करते हो तो आपका फैक्टर क्या आता है? प्लस फैक्टर। ओके क्लास, डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बड़ा होता है। 1 मीटर क्यूब। हाँ क्लास में बोलता हूँ, ये समझो लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, राइट। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। इसको डेसीमीटर लिखता हूँ तो कितने लिखूंगा मैं? 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर। तो क्लास अभी इसका वॉल्यूम कितना होगा बोलो डेसीमीटर में लेंगे तो? 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1000 1000 डेसीमीटर decimeter cube. क्यूब। प्लस अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता 100 है? centimeter. 100। 100। तो मीटर 1 मीटर का मैं 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना होता है? 10,000। 10,000. 10 थोड़ा ना 1 लाख होता है, 10⁻6। देखो 1000 इंटू 1000 इंटू, सॉरी 1000 है, 100 इंटू 100 इंटू 100, राइट। प्लस कितने जीरो है? 2 4 और 6, बराबर ना। और देखो जीरो, देखो काउंट करो, ये 2 ये 2 और ये 2, बराबर ना। 10⁻6 क्लियर है? क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. sir. Yes sir. Yes sir. बस उल्टा करो। प्लस आप ये ना बहुत चीजें आपको ना बहुत बार लगेंगे, आप केमिस्ट्री में बहुत लिटरली बहुत बार। प्लस उल्टा 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना डेसीमीटर क्यूब होगा? -1 10⁻³ और उल्टा कर रहे हैं। देखो अभी हम लोग पहले डेसीमीटर क्यूब को कितना करेंगे यार? सेंटीमीटर क्यूब हाँ, में। हाँ, उल्टा 10⁻³ क्या आएगा? डेसीमीटर प्लस अगर आप ये नहीं समझोगे ना, आप स्टेट्स ऑफ मैटर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये आपको आना ही है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको लगेगा ही लगेगा ये। हाँ क्लास 1 डेसीमीटर क्यूब is how many meter cube? 10⁻³ मीटर क्यूब। Meter cube. And 1 centimeter cube is how many meter cube? 10⁻6 10⁻6. मीटर। तो ये सब वॉल्यूम के यूनिट हो गए। और क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लोग 1 लीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 लीटर। तो आपको जो पसंद लिखो, आप 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो या फिर 1 लीटर बोलो, इट इज वन एंड द सेम। डेसीमीटर क्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? 1 लीटर। लीटर। 1 लीटर डेसीमीटर क्यूब का लीटर। तो 5 डेसीमीटर क्यूब कितना लीटर होता है बच्चों लोग? 5 dm क्यूब हाउ मेनी लीटर? 5 लीटर। 5 लीटर। एंड क्लास दूसरा है 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मिलीलीटर भी बोलते हैं, ml। क्या बोलते हैं? मिलीलीटर। तो 1 cm क्यूब क्या होता है? 1 ml। ml मतलब मिलीलीटर। तो क्लास आप मिलीलीटर बोले या cm क्यूब बोले, वन एंड द सेम थिंग। तो अदर नेम फॉर डेसीमीटर क्यूब इज लीटर एंड Liter. अदर नेम फॉर सेंटीमीटर क्यूब इज मिलीलीटर। मिलीलीटर। रिमेंबर दिस। तो ये हो गया वॉल्यूम, किसके यूनिट हो गए? वॉल्यूम के। ओके क्लास नेक्स्ट इज प्रेशर। पर मुझे लगता है प्रेशर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। प्रेशर प्लस प्रेशर किसके लिए मेजर किया जाएगा बोलो मोस्टली? एटमॉस्फेयर हाँ नहीं, किसके लिए मेजर करें? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए? Gases. Gases. हम लोग प्रेशर मोस्टली गैसेस के लिए मेजर करते हैं। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग अभी एक्सिस ऐसे लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका एक और नाम होता है पास्कल। क्या नाम होता है? पास्कल। क्लास प्रेशर होता कैसे है, मेजर कैसे करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लास एक सिंपल, आपने प्रेशर मेजर करते हुए किसी को देखा है, किसी को कभी प्रेशर मेजर करते वक्त? Yes, sir. No. क्लास आपने देखा है, डॉक्टर को देखा है, डॉक्टर को? Yes. हाँ, sir. yes, yes, yes. Sir. हाँ, तो उसके बाद होता है बैरोमीटर। तो उसके अंदर जब वो जो बलून को जब हम प्रेस करते हैं तो देखा बैरोमीटर में मर्क्यूरी ऊपर जाता रहता है। हाँ, yes, sir, yes. हाँ, ठीक है। तो बैरोमीटर होता है, तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। तो क्लास वो सब क्या होते हैं, विल डिस्कस दैट नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ओके, Bye, sir. मैं नोट्स भेजता हूँ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir.